So let us start with the new condition, that is the obsessive compulsive disorder. Right? In the last session, we have seen the case of panic disorder. And we have seen in the previous session the psychodynamics, how the anxiety gets, or how anxiety build up in person. Right? Now these two things are the different. When we do the psychoanalysis, right? The psychoanalysis means we are going far away in the developmental period of the child and trying to find out the conflict in the development period. What is the development period in the child? The from birth to 5 years is the developmental period where the psyche gets developed, or there could be a possibility of conflict according to the situation, background, environment, and the genetic background. Right? Though the psychiatric disorder comes on surface in the adulthood, might be the person suffered at the age of 24, at the age of 40, but if you see their seeds, the seeds lying in the childhood development, right? That we have to understand. That's why in homeopathy our case taking indicates the one of the method of psychoanalysis. What we are doing is the way of doing the psychoanalysis according to the psychiatry. Because what we do the retrospective study. We do the person from their childhood. We do the every epochs of the life, every stressors of the life. We're trying to find out whether the child or that person that person face with the conflict or the stress, and how that stress repercusses on the body or on the mind, right? So in the same way we have seen how the anxiety gets resurfaced. Now give you the example, the latest example. The last week, the one lady who is the 34 years old comes to me. Actually, she was coming to me because of her child who suffered with the severe urticaria, right? Which was managed beautifully with the homeopathic medicine, right? But when she seen the homeopathic result, because the that child having the urticarial rash with severe intolerable itching all over her body, which was not managed with the pediatrician, not managed with the dermatologist by even giving the prednisolone, that means steroids. The condition remains as it is, which was managed with the homeopathic medicine. तो उन्होंने ये देखा कि वह होम्योपैथिक मेडिसिन से भी क्विक रिलीफ मिलता है. जो स्टीरॉयड और डर्माटोलॉजिस्ट पेडियाट्रिशियन ने मेडिसिन देके भी बच्ची को आराम नहीं मिला, तो उन्होंने भी दिखाया कि मुझे दिखाना है करके. तो लास्ट वीक उन्होंने दिखाया इन व्यू ऑफ पाइल्स, मतलब समथिंग देयर इज अ पेन एंड प्रोट्रूजन, दैट मींस देयर इज अ पाइल्स एंड फिशर, right? But when I took the case, I realized that, and even the intermittently her husband told me that कि her behavior is like this. मतलब अगर कहना ये है कि हस्बैंड का भी कहना था, मतलब इन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द केस, कि ये दिन में 4 से 5 बार कपड़े चेंज करती है और अपने बच्ची को भी कपड़े चेंज करवाने लगाती है. ट्राई टू सी, you can get the clue to enter into the point to explore the personality. Why this so? बराबर है. क्यों? कि मुझे लगता है कि डर्ट हो गया, इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर मैं ऐसे चद्दर, मतलब घर में अगर कोई मेहमान आते हैं, मेहमान तो छोड़ो, अगर बच्ची भी बिना नहाए अगर बेड पे बैठती है तो मैं तुरंत चद्दर चेंज कर देती हूँ. और कहीं पे भी मेरा हाथ का कहीं टच हो गया गलती से तो मैं हाथ धो लेती हूँ. सो इट वॉज अ
frequent washing the hand, frequent changing the cloth. They don't bear the dirts, don't bear the anyone outside coming and sitting on her bed using her cloth like this. So all these things causes the severe tension. All these thing causes the severe tension in it, in her, and compelling her to act according to the that compelling her to act, that means compelling to change, to wash like this. Now why this is since these things occurs, these things going or increasing day by day, right? It is not since the childhood. When I ask about this, ki how it started, how it was started, because we need to understand the cause effect relationship कि अगर ये इतना डिस्गस्ट, इतना क्लीनलीनेस है, क्लीनलीनेस चाहिए, वॉशिंग चाहिए, चेंज करना है, ये सब कैसे शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ ये, whether it is since the childhood, might be there is a patient is very fastidious, so that she like the cleanliness. See, liking cleanliness and fastidious nature is different from the abnormality or the disorder. We have to mark or differentiate from normality to abnormality. Doing the things perfectly, wants everything neat and clean, don't like the dirtiness. But if the things repeated, and when it causes the distress in the daily life and performance, and unless and until if the person is not doing that thing, the tension and the distress build up and gets relief when that things done that things, राइट. दैट मीन्स कि उसको लगता है कि मतलब डर्टी है हाथ, डर्ट मतलब गंदे हो गए, हाथ लगाया, यहाँ हाथ लगाया, गंदे हो जाएंगे, गंदापन हो जाएगा, मुंह में जाएगा तो बीमारी हो जाएंगी या और कुछ हो जाएगा. तो वो जो टेंशन बाउंड होता है या एंजाइटी बाउंड होता है, उसको रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एबनॉर्मल पर्सन में या डिसीज पर्सन में विच हैविंग द ओसीडी, which is not there in the normal person. And after some times again that tension bound and then again release, again create, again release. This is the way to that the OCD person behave. Now if you see the how this started, he narrate the story that when she was the 10th, she was at the 10th class, है ना. तो जब कॉलेज छूटा, है ना, पहले से बचपन से, सी सच अ काइंड ऑफ person is quite anxious from the beginning, but anxious person, or we can say anxious disposition, not goes into the disorder that require to convert into the disorder. That person requires some triggering factor. Might be there is a soil in the form of strong family history of anxiety disorder, panic disorder, or OCD, right? But the triggering factor was at the when she was at the 10th क्लास. और कॉलेज छूटने के बाद क्या हुआ कि वो जिस ऑटो में बैठी, तो वो ऑटो में और दो बंदे बैठे जो कचरा चुनते थे. मतलब गंदगी, जैसे कचरा ये जैसे रहता है ना, साफ सफाई वाले जो झाड़ू मारते हैं, साफ करते हैं, है ना. तो गंदे कपड़े में उनके पास गंदा बैग था, मतलब वो थैली थी जिसमें कचरा, मतलब क्या था, और गंदे कपड़े थे. तो वो भी बैठे और ये पेशेंट भी बैठी, तो उनका उसको टच हो गया. और दैट कॉजेज द इंटेंस डिस्ट्रेस कि वो कि मुझे अभी क्या हो जाएगा, ये इन्फेक्शन फैल जाएगा, मेरे बॉडी में इन्फेक्शन चले जाएगा. और जैसे वो घर में गई, कुछ देखा नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट बाथरूम में गई और पूरा काफी देर तक अपने बॉडी को क्लीन करते रही, काफी देर तक नहाते रही, बराबर, इन ऑर्डर टू क्लीन दैट, कि उसको वहीं पे
कंफ्लिक्ट एक्टिवेट हो गया कि अभी बॉडी में इंफेक्शन गया, डर्ट गया, मुझे वो लोगों का कांटेक्ट हुआ, टच हुआ, बराबर. आफ्टर दैट दिस क्लीनलीनेस, दिस dirt, cleanliness, washing, changing, all this getting increased and amplified. Actually, it start that the people observe कि this is the abnormal behavior of the that this person. बराबर है. So this is the way that something is triggering and that cause the disease to come out, right? Right. So that we have to evaluate. This is not enough to understand just कि यहाँ से triggering है. We have to understand the childhood. Even we have to understand the background of family background. कि why this anxiety disorder or panic or OCD comes in this child, right? So you will get the some conflict, right? Now the common psychodynamic behind the anxiety symptoms or anxiety disorder, most important is the fixation. Fixation at the immature level, that means at the when there is a psychosexual development is there up to 5 years, according to Sigmund Freud. This is the Freud theory, psychoanalysis of the person. He developed the 5 stages of psychosexual डेवलपमेंट और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस बोलते हैं. डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के 5 स्टेजेस उन्होंने डिस्क्राइब किया है, हम देखेंगे आगे. The adult who develop anxiety reaction always harbor unconscious conflict system that are powerfully valued and easily reactivated. Right? In other words, they are example of arrested development or of fixation or prematurely interrupted learning. Fixation early in the life. This fixation early in life at an immature level of functioning can result from variety of experience. मतलब ये fixation क्यों होता है? There are the different type of fixation like anal fixation, oral fixation, like this. We found that the infantile wish has been repeatedly aroused but consistently frustrated. मतलब बच्चों में जो इच्छाएं जागृत होती है, वो इच्छाओं का दमन होता है, उस इच्छाओं को पूरा नहीं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है. तो when this occurs continuously, there is a frustration. It has been denied satisfaction or the child has been treated or threatened with reprisal. और when the बच्चा अपनी जब इच्छा को जागरूक करता है, इच्छा को जाहिर करता है, तो पेरेंट्स उसको पनिशमेंट देते हैं. तो इच्छाएं गुप्त हो जाती है या सप्रेस हो जाती है या रिप्रेस हो जाती है. And that form, if it occurs repeatedly, and that instinct, that means id. I think you know this id, ego and superego, because the इनिशियल जो डेवलपमेंट होता है वहां पे ईड जो होता है, जो अनकॉन्शियस प्रोसेस है ना, वो काफी स्ट्रांग होता है ईड. देन आफ्टर 5 years or 3 years this ego develop and then super ego develop. This id is not like a egoistic, or ego is not like a egoistic. This id is a different id, ego and super ego. This is the development of psych. बराबर है. तो ईड satisfied होना जरूरी. इफ इट इज नॉट satisfied and frustrated or it punish repeatedly, then it forms the fixation or it forms the conflict. Now the repercussion of the conflict will not immediately that the peoples or that person get surface. That this conflict then resurface or reactivated in the adulthood, in the adolescent or adulthood, right? Now another important point is that how the person goes into the anxiety disorder, right? The important psychodynamic behind it is the childhood experience with the parental model. Childhood experience with the parental model means how we define this.
I think the screen is visible to all. Childhood experience with the parental model. अभी parental model मतलब क्या? Every child consider his or her parents as a ideal, right? Ideal person in the initial phase of the development of life or child. Children mostly adapt the pattern of behavior through the identification with the parents and mostly the anxious parents. Because if the parents is anxious, then they identify with that anxious parents and try to mimic, uh, and their anxiety is transferred to the that children. अभी कैसे ट्रांसफर होती है ये एंजाइटी, कैसे ट्रांसफर होती है? That result into the tantamount to a training in being anxious themselves. Children can be trained to be tense and anxious by parents who are not themselves especially anxious person. बराबर है, जो एंशियस नहीं है तो भी वो चिल्ड्रंस जो एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स को, या फिर ऐसा होता है कि जो ओवर एंशियस पेरेंट्स होते हैं, है ना, ओवर कॉशियस पेरेंट्स होते हैं, जो अपने बच्चों को कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो डायरेक्टली उनको मना करते हैं. दे रिप्रीमांड्स, दे स्कोल्ड द चाइल्ड, देन डोंट डू दिस, डोंट डू दिस. कभी कभी आपने भी देखा होगा, दिस इज प्रैक्टिकल थिंग्स. We have to be even we have to apply in your daily life or in the family, or we must guide to the other family members or the couple, right? कि हम जब भी जैसे हम अगर बच्चे को हमको अगर मना करना रहता है तो हम देखिए आप, हम क्या करते हैं, अगर जाना नहीं, सीढ़ी से अगर जाने की कोशिश करता है नीचे, तो हम बोलते हैं कि वहां पे भूत बैठा है, हम बोलते हैं कि वहां पे चोर आ जाएगा, वहां अंधेरा है, वहां को कुछ आएगा और आपको खा लेगा. दैट गिव्स द इंटेंस थ्रेट एंड टेंशंस इन द चाइल्ड माइंड. And this intense threat and tension remains, and it repercusses over the personality, right? And another is the overprotective parents. That means train for example, they may train a small child to be habitually apprehensive by making sudden protective lunge and by giving continual warning of danger. मतलब वही ओवर प्रोटेक्टिव कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहां पे ऐसा होता है, वहां वैसे होता है, मतलब हर बात पे. अगेन दिस रिक्वायर्स द ट्रेनिंग. मतलब अगर आपने उसको उस समय वो चीज के लिए अगर डरा दिए, तो पेशेंट बिकम्स फ्राइटन्ड एंड द फियर रिमेन्स इन हिज पर्सनालिटी, दैट मे गिव्स राइज टू इन द लाइफ, may turns into the disorder in the form of anxiety disorder, generalized anxiety disorder, OCD, panic. But again, it requires the some strong inhibition or conflict, right? If this occurred, or sometimes it happened that conflict develop, may resolve in the initial period of the life itself by कुछ ऐसे बिहेवियर, पेरेंट्स ने अपने बिहेवियर चेंज कर दिया, या कोई ऐसा बंदा मिला है कि उनको अगर उसको अगर समझा दिया कि नहीं, ये यहाँ ऐसा नहीं रहता है, सब ठीक होता है, यहाँ कुछ ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, एंड दैट helps to resolve the conflict, then that will not repercuss in the negative form. This may happen. So we have to be very careful while doing these things, because everything that we behave, how we behave with the child remains in the unconscious or subconscious mind, and that reflect in the form of personality. Anxiety disorder have been found to develop in family in which the parent places the high expectation on their children, but then fail to acknowledge or even disparage their offspring accomplishment as a substandard.
अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि काफी हाई एक्सपेक्टेशन, बच्चे का आईक्यू इतना नहीं है और उनको उसको हम कंपेयर करते हैं बाकी बच्चों से कि उसको 99% मिले, 95% मिले, तुमको भी मिलना चाहिए, तुम करो करो करो, खिलो मत, ये मत करो, टीवी मत देखो, सब तरह तरीके से उसको बम्बार्डिंग होता है, उसके विश को सप्रेस किया जाता है। जो ईड होता है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, राइट, एंड देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द ईगो डेवलपमेंट। बराबर, तो एक्सपेक्टेशन काफी है, और जो भी उसने गेन किया है बाय मेहनत से, जो भी उसने कमाया है, जो रिजल्ट मिला है या जो आउटकम निकला है, उसमें कभी भी उसको क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करना, बराबर है कि नहीं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, उसमें गलतियां निकालना, बराबर है कि नहीं, ऑल दिस। और बच्चों को वो क्रिटिकल वे से वो क्रिटिसाइज कर से बात करना, दैट मीन्स दैट पेरेंट्स मोस्टली टॉक अबाउट द थिंग्स इन अ क्रिटिकल वे। तुमने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वो बच्चा देखो उसने कैसा किया, बराबर है, ऑल दिस थिंग्स गिव्स राइज टू दिस चेंज इन द साइक, राइट, if it is repeatedly done, बराबर है कि नहीं। That's why it is very important to even explain or to understand that never compare our child or any child to someone whose IQ level is different from this child, right? So we have to understand this, because these things gives rise to a psychological problem or psychiatric problem, right? So this is the psychodynamic understanding of the anxiety disorder, ये हमने लिया था, right? So come to the case, I think पैनिक डिसऑर्डर का ओरल और एनल फेज। अभी ओरल फेज जैसे ये बोलते हैं ना कि ओरल फिक्सेशन, मैंने बताया एक टर्म एनल फिक्सेशन, तो ये साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन द अर्ली एज ऑफ द लाइफ रहता है। तो ओरल स्टेज में क्या होता है, व्हाट दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिगमॉइड फ्राइड, because most of the peoples are in the history, if you see the Sigmund Freud was harshly criticized, but sometimes it is the thought process of Freud get become accepted. According to him, that when the child start from birth to 1.5 year to 2 years, they try to take a pleasure by breastfeeding. सो वो फीडिंग और सकिंग जो है या च्यूइंग जो है, दिस इज द वन वे टू ग्रेटिफाई हिज और हर इंस्टिंक्ट, दैट मीन्स ईड, बराबर। The oral stage occur from birth until 2 year of age with the corresponding erogenous zone from the stage being the mouth. माउथ ये इंस्टिंक्ट रहता है जहां पे वो अपने डिजायर या प्लीजर को सेटिस्फाइड करता है बाय सकिंग और च्यूइंग, by sucking the breast or nipple, right? Now, this disruption in this oral stage of development, if there is a disruption, if they are not able to gratify himself or themselves by doing that things, then there could be a conflict occur or disruption in the oral stage of development. And that disruption leads to oral fixation. Now, it has been postulated that when the person having the oral fixation, then they can easily turn or they will easily turn into the smoking like a habit. Why this so? Because smoking, keeping the cigarette in the between the lips again gives to the pleasure to the oral or mouth. That means there is a reactivation of that stage, pleasure feeling or pleasure sensation that adult get. So if there is a disruption in the oral stage, that gives rise to a smoking as a habit or any habit which gives the pleasure to the mouth or lips, right? वैसे ही एनल फिक्सेशन का है सेकंड स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट,
यहाँ पे जो टॉयलेट ट्रेनिंग होता है जो 1.5 साल से लेकर 3 साल तक होता है, वहां पे अगर प्रॉब्लम आया, बिकॉज अगेन द टॉयलेट ट्रेनिंग इज द सेकंड स्टेज, इज द इरोनियस एरिया, है ना, जैसे ओरल था, ये एनल एरिया है, वहां पे अगर कंफ्लिक्ट डेवलप हुआ तो देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस ओसीडी टाइप, है ना, एनल फिक्सेशन से ओसीडी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे ईगो डेवलपमेंट होता है, दैट मीन्स ईड कहीं तो सेटिस्फाइड होके ईगो आता है, ईगो मीन्स रियलिस्टिक माइंड, राइट। सो वही, so hope you understood this thing, the psychodynamic, actual psychodynamic in the psychiatry, right? What we Excuse do, me, sir. we usually do. Hello. Excuse me, sir. हाँ. Sir, can you explain anal fixation a little bit? Okay, okay, because I think that people are not much interested, or this is much out of, but no problem. So oral stage, I think you understood the anal stage. This anal stage start from the 15 month to up to 3 years. 15 month of the age in the psychosexual development age. The anal stage occurs with corresponding erroneous zone on the bowel and bladder control. मतलब in this stage toddlers learn how to toilet train. That means ये toilet training का age है, जहां पे लैट्रिन पेशाब कहाँ करना, कैसे करना, कहाँ इसको ये करना, यहाँ करना सही नहीं है, वहां करना चाहिए, बराबर है। तो ये कॉन्शियसली बच्चों में समझ आती है। नाउ दिस ओरल फेज जो होता है या ओरल स्टेज होता है, यहाँ पे बच्चों में समझ नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है, बराबर है कि नहीं। वो सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट को या ईड को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रियलिटी, irrespective of the morals, irrespective of what is the right and wrong, क्योंकि यहाँ पे ईगो डेवलप नहीं होता है, लेटर ऑन सुपर ईगो वो डेवलप नहीं होता है, यहाँ सिर्फ ईड होता है। तो ये जब एनल स्टेज आता है जहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग होता है, which means they understand how to control their bodies and continue their acceptance of delayed gratification. Now here the training where the person understand or that child understand कि अगर हमको defecation करना है तो हमको टॉयलेट में जाना है या प्रॉपर वे से कहाँ बैठना है, बराबर है कि नहीं। तो ही ट्राइंग टू डिले द ग्रेटिफिकेशन। यहाँ पे पहले क्या रहता था कि ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट चाहिए विदाउट एनी थिंकिंग कि ठीक है कुछ भी हो जाए, आगे पीछे क्या होने वाला पता नहीं। पर यहाँ पे कैसा है कि लैट्रिन या स्टूल या डेफिकेशन या अर्जिंग जब होता है, ही नोज और ही रियलाइज और ही लर्न और शी लर्न कि हमको कहाँ जाना है, बाथरूम में जाना है। सो देर कुड बी अ डिलेड इन द ग्रेटिफिकेशन, and additionally the ego develop, helping the child with the delayed gratification by quelling the id impulsive desire, right। मतलब जो डिजायर्स होती है, जो ईड होता है, जो प्राइमरी इंस्टिंक्ट होता है, उसको थोड़ा बाजू में रख के दबा के या साइड में करके यहाँ पर ईगो डेवलप हो रहा है, जहाँ पे वो रियलिटी को समझता है और वो बताता है कि हमको अगर टॉयलेट आया है या लैट्रिन आया है या अर्जिंग आया है तो हमको क्या करना है, कहाँ जाना है। तो दिस इज द anal stage, but the anal stage, this is the second stage of psychosexual development associated erroneous pleasure। हाँ। Now Freud believed that difficult toilet training could have long lasting effects on the personality. The child who is not able to train or goes under the toilet training, or they are not accepting that things, barabar hai, what happens, they becomes the effect of that remains lasting, and you may repercuss that effects over the adulthood or the adolescent age in the personality, and could lead to anal expulsive fixation and anal retentive fixation। that means might be some child may suffer or make that parents complaining of कि
बोलते हैं ना कि बच्चे को लैट्रिन आती है तो भी छुप जाता है और रिटेन करके रखता है. सम चाइल्ड इज नॉट एबल टू रिमूव द stool, not able to defecate, not able to. Some child feels highly shy to defecate in front of the peoples, or defecate in the toilet, or they defecate silently, secretively. This things, or this condition, you may know, or you may see in your patient. So if this anal fixation occurs, this may reflect in the personality in the form of certain disorder, like OCD, like anxiety disorder, or like this, right? I hope you understood. Hello. Ah, madam. Yes, sir. Very nicely explained. Thank you. Okay, so come to the case. It's a 3:45. Come to the case. This is the case of OCD. Very nice case. Try to listen it carefully. Try to interpret. Try to see how to interpret the rubric, how to understand the person, how to come to derive the core of the case. Right, sir? See, what we do usually do when we enter, when the case comes to us, what usually the homeopath do, take all the symptoms, all mental symptoms, मतलब रिपीटेशन है, क्लीनलीनेस है, फास्टिडियस है, परफेक्ट है, ऐसा ही चाहिए, वैसे ही चाहिए. They took all the mental symptoms into the consideration and converted into the rubric, and form the large amount of totality, which having the 10 symptoms, 15 symptoms, 20 symptoms, and then from that they try to find out the medicine. This is not the way in any case, whether it is a pathological case or whether it is the psychiatric case. We have to understand the person, and we have to, मतलब ऐसा है कि हमको खान से जैसे सोना निकालते हैं, या हमको वो चीज से एक पॉइंट को ऐसा निकालना है जो पूरे कोर को, पूरे केस को रिप्रेजेंट करे. और ये केस वही दिखाता है कि हमको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है. What is the common to us is not the prescribing totality. But the common for the disease diagnosis is not a prescription totality में नहीं आएगा, है कि नहीं? Again, how the miasm filter is important to crack such a case, right? So let us start. Mr. Swapnil, who is a 30 years male, studied up to the BCom, married since 1.5 years, I think. We having the back shop, मतलब उनके फैमिली का है, पिताजी भी, काका वगैरह बैठते हैं बैक शॉप में. बाद में ये इन्होंने शुरू किया. The case was taken on the 9th June 2022. This is the case from my Ravinagar clinic, Nagpur. Now the patient complaining of, the patient comes to me with his wife. Again, it is important to whom the, मतलब कौन आया है, अकेला आया है, वाइफ के साथ आया है, मदर के साथ आया है, फादर के साथ आया है कि नहीं? बिकॉज एनी साइकेट्रिक केस, ध्यान में रखिए, कोई तो भी अकम्पनीड पर्सन चाहिए. साइकोटिक केस लाइक सिजोफ्रेनिया, डिलूजनल डिसऑर्डर, इसमें तो चाहिए चाहिए 101%, उसके बिना तो काम ही नहीं होगा. पर ये न्यूरोटिक डिसीज में भी चाहिए, राइट? सो देयर वाज अ परसिस्टेंट थॉट, एक कंटिन्यूअस इमेजिनरी थॉट्स आते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ भी, कांस्टेंट थॉट आ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे कुछ ना कुछ सोचते रहता हूँ, है ना, कि कैसे होगा, क्या होगा, सब तो ठीक है ना. अगेन देयर इज अ हैबिट ऑफ क्लीनलीनेस, चेकिंग एंड रीचेकिंग, रिपीटेडली चेक द थिंग्स, रिपीटेडली रीचेक द थिंग्स. और किसी ने अगर बताया कि नहीं सब ठीक है, और उसने भी समझा कि सब ठीक है, फिर से चेक करेगा, मतलब सब ठीक है फिर से चेक करेगा. दैट मीन्स रिपीट द थिंग्स, रिपीट द क्वेश्चन. They feels very dirty, that's why used to wash in the bathroom, used to wash the body, which requires half an hour. मतलब ऐसे नहीं, हाफ एंड मोर देन हाफ एन आवर, मतलब धोते रहेगा पानी ऐसे,
ओसीडी में आप देखेंगे कि फैमिली में बताएंगे कि ये नहाते ही रहता है, एक बार बाथरूम में गया तो जल्दी निकलता नहीं है, बहुत पानी वेस्ट करता है, पानी खत्म हो जाता है, एक बाल्टी से सब लोग नहाते हैं, ये 3-4 बकेट पानी यूज करता है. So this is the way that family member narrate in such cases. Now there is a certain emotional things or symptoms increase since 2 weeks, like a frightened. The patient becomes frightened and रात में बहुत ही घबराने लगा है, उसको अंधेरे में काफी डर लगने लगा है, और इसके कारण वो लाइट लगा के ही सोता है. दिस इज द नरेशन बाय द वाइफ. है की नाही, की हा बा रात्री झोपत नाही, घाबरलेला असतो आणि रात्री याला फक्त लाईट लावूनच पाहिजे, अंधार किंवा झिरो लाईट नाही चालत आहे. एंड व्हेन वेक, और जब बाथरूम के लिए उठता है रात में, तो एकदम से घबराया हुआ रहता है, और जब उठता है तो इतना घबराया रहता है कि मुझे ऐसे टाइट पकड़ लेता है और मुझे बोलता है कि साथ में चलो. मतलब सी द 30 years male patient who wake up at night for toilet or suddenly wake up with the fright, wants someone to be with in bathroom, to pass the urine, to defecate, like this. See the intensity of the fear, right? The problem, whether it is the normal, whether it is the abnormal. 4-year child, 3-year child, if wake up in the middle of night and then arouse, मतलब वो अपने मम्मी को उठाता है और बोलता है कि मुझे पेशाब लगी, आप साथ में चलो, बराबर. And 30 years male child who is married, doing the same thing but in the fear and fright state, right? So we have to differentiate this. एंड मला गच्च पकड़ून झोपतो, मुझे मतलब सोता भी है तो एकदम पकड़ के सोता है, और कहीं पे भी जाना है तो साथ में, मतलब बाथरूम में, लैट्रिन में जाना है, साथ में चलो, ऐसा अकेला नहीं जाएगा. Also the patient having the severe burning pain while passing the stool, during stool and after stool since 2.5 months. He shown to anorectal surgeon, जो सर्जन होते हैं जो फिशर हिमोरॉइड्स के ऑपरेशन करते हैं, तो उन्होंने एडवाइस किया कि ये जो प्रॉब्लम है आपको फिशर का, इसमें आपको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा. और वहां पे पेशेंट एकदम डर गया, मतलब मैं घबरा गया और थर 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 कांपने लगा, मतलब इतना डर डर गया कि मुझे ऑपरेशन या अभी ऑपरेशन करने के लिए बताया करके. Physically, if you see the physical general, the stool is very hard, and there was a history of constipation since childhood. Urine was normal, perspiration scanty, appetite diminished, thirst less recently, hunger can be tolerated, craving for the sweet. Aversion to milk, food and drink aggravation, that is the cold food, sleep disturbed due to the fear and due to the fear and snoring. Dreams not specific. Thermally, if you see, the patient is sensitive to both heat and cold. Woolen require, but in the extreme of the cold, है ना, जो ठंडी एकदम बहुत ही ज्यादा ठंडी है तभी वो वूलन यूज करेगा, स्वेटर वगैरह यूज करेगा. सन हीट से इंटॉलरेंस है, which causes the headache. Draft of air doesn't cause anything. Damp, rainy weather doesn't produce anything. Sensitivity in general, if you see the sun aggravation is there, no noise and light sensitivity, tight clothing sensitivity, no allergic reaction to anything. Now see Lyspace, try to understand or try to listen it carefully. The Lyspace of the patient in the childhood. uh, when I ask about kids, say tell me something about your childhood, है ना, तो पेशेंट क्या बताता है, स्कूल एट 13 year ऑफ एज, 7th standard में जब स्कूल में था 7th standard में, तो दो दो लड़कों ने मुझे काफी घबरा दिया, है ना. क्या हुआ कि वो दोनों लड़कों का मारा मारी हुआ और उन्होंने कंप्लेंट किए मैडम को. तो उसमें से एक लड़के ने बोला कि स्वप्निल, तू मेरे तरफ से बात करना, तो मेरे तरफ से बोलना कि मेरी कुछ गलती नहीं है, ये अपोजिट जो दूसरा फ्रेंड है उसकी गलती है.
और ऐसा जब बोला कि वाह, उसको लगा कि दोनों दोस्त या दोनों ने मारा पीटी की है, पर एक बोल रहा है कि तू मेरे तरफ से हो, उसके अपोज में हो, उसके विरुद्ध में हो। तो ये डर गया कि अभी क्या होगा, और वो डर के कारण स्कूल से वहां रुका ही नहीं, एकदम घर में भाग गया घर। और उसके बाद से वो स्कूल में जाना ही अवॉइड करने लगा। और उसके बाद कॉन्फिडेंस उसका लो होने लगा, स्कूल स्कूल में नहीं जाना या अवॉइड करना, है कि नहीं, या डर डर में जा भी रहा है तो डर के माहौल में जाना। मतलब वो डर उसके मन में बैठ गया था। मतलब वो दोस्त ने जो दोस्त ने उसको बोला कि तू मेरे साइड से बोल, तो इसने किया नहीं और ये भाग के आ गया। तो उसको ये डर सताने लगा कि अभी ये दोस्त मुझे मारेगा, क्योंकि इसकी बात मैंने सुनी नहीं, है ना। तो वो डर में वो रहता था। और ज्यादातर बचपन से ही वो घर में ही ज्यादा प्रिफर करता था, दैट मीन्स ही इज द रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन। अभी ये जब मतलब बालवाड़ी में जब पढ़ने जाता था, तब कुछ शायद वो पढ़ाई नहीं करता था, या कुछ अगर गलती हो गई तो उसको रूम में, वो बालवाड़ी में एक रूम में उसको बंद करके रखते थे। और तभी भी वो बहुत घबरा जाता था। See, doing such a kind of things in early childhood or with the child is quite terrific. Now, such a kind of behavior by anyone, whether it is by parents, by administration, institute, school, balwadi, that gives the long-lasting impact on over the that child psyche, right? तो वहां पे भी जब भी जैसे बड़ा होता गया, उसके फ्रेंड कुछ ज्यादा नहीं थे, सब फ्रेंड्स खेलते थे और वो चुपचाप ऐसा खड़ा रह के देखता था। मतलब नेवर पार्टिसिपेट, इवन नॉट डेयर टू पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स, और दैट द फ्रेंड्स आर प्लेइंग बट दे डोंट डेयर, डिडंट डेयर टू प्ले विद देम। आफ्टर मतलब 10th 12th में इसको ऐसा कि पीछे ही रहना, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना। तो उसके पेरेंट्स को, वो सिंगल चाइल्ड था तो उसकी सभी इच्छा पूरी होती गई, उसको ज्यादा लाड़ प्यार ज्यादा मिला। तो आफ्टर 10th उसने प्राइवेट एग्जाम दिया पेशेंट ने, बट उसमें कुछ इच्छा नहीं थी, कॉन्फिडेंस काफी लो था। क्योंकि जब ये इंसिडेंस हुआ, इंसिडेंस कब हुआ, 6th स्टैंडर्ड में, उसके बाद से मतलब 7th स्टैंडर्ड से उसका परफॉर्मेंस काफी लो होते गया, और ज्यादातर वो घर में ही रहता था। बराबर है। उसने अपने एज के 22 ईयर्स, मतलब 22 साल के एज में, उसने जो घर में शॉप था जो पहले से ही काका और पिताजी चलाते थे, उसको ज्वाइन किया और उसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया कि अभी मुझे जाना है। क्योंकि उसके पहले से ही घर के लोग उसके पीछे पड़े थे, पर वो नहीं जाता था, क्योंकि उसको वो शॉप में जाना भी पसंद नहीं था, है ना। और जाता भी था तो ऐसा होता था कि वो शाम को बैठता था, राइट। Thumb sucking is the oral fixation, right? And the Barata, like Barata, right? You are right. Person never like to quarrel or never react to anyone. किसी ने कुछ बोला तो भी चुपचाप सुन लेने का, किसी को कुछ हर्ट नहीं करता था, किसी से ज्यादा बहस नहीं करता था। बराबर है कि नहीं। डिसीजन अगर लेना है तो काफी कंफ्यूज हो जाता था, कंफ्यूजन while taking the decision because of the severe lack of confidence, quite obstinate in nature, but easily gets weeping if someone scold or reprimands, very emotional and sensitive person, offended easily। अगर जब हॉबी के बारे में पूछा तो उसका तबला बजाना उसका हॉबी था, और उसने वो तबला बजाने में विदर्भ लेवल पे भी, मतलब विदर्भ लेवल पे उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। और तबले की जो एग्जाम होती है उसको भी उसने दिया था। अब ये जब तबले की एग्जाम थी, तब क्या हुआ कि तबले के एग्जाम में जैसे रो में बिठाते हैं,
तो पीछे जो बच्चा बैठा था उसने इसको, ये पेशेंट को पूछा कि इसका आंसर क्या है। तो वो इतना डर गया कि वहां से उठ के भाग गया। है ना, उसने, उसको पता है नहीं कि, पीछे के लड़के ने पूछा कि इसका आंसर क्या है, उसने उसको बताया नहीं, पेशेंट भाग गया, वहां से छोड़ दिया और भाग गया। अभी जब पूछा कि ऐसे क्यों किया, तो उसको की काही झालं तर, मी जर सांगितलं म्हणजे टीचरनी पाहिलं आणि काही झालं तर, तो वहां पे भी उसका डर, एंड सी द वे द शी हैंडल द स्ट्रेस, ही हैंडल द स्ट्रेस, हाउ ही रिएक्ट टू द सिचुएशन। मूलीबद्दल जैसे ये हम पूछते हैं ना, लड़कियों से कैसा रहता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अडल्टहुड में। ओल्ड एज में नहीं पूछना, बच्चों में जब चाइल्ड आता है, या अडोलसेंट एज और इवन द अडल्ट, कि आप जब स्कूलिंग से बारे में हम डिस्कस करते हैं पेशेंट से, है ना, कॉलेज के बारे में, तो लड़कियों के साथ आपका तालमेल कैसा रहता है, बराबर है। जब पेशेंट ने बताया कि उसमें कुछ ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते थे, ये बहुत ही स्लो था और खूब सादा, खूब बहुत ऐसे शांत और सादा माइल्ड इंसान था। मैरिज हुआ 3 साल हो गए, ओके, मैरिज को 3 साल हो गए। वाइफ पूछा तो वाइफ कैसी है, वाह, वाइफ से कैसे रिलेशन है, तो ठीक है। सेक्सुअल रिलेशन कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर दिस psychological symptoms, whether it impacts on the sexual life or not. If it is impact, at how it impact. Now, see, one of the case I have taken here in the Dhantuli clinic to 10 last week, who having the schizophrenia, when he married, 2-3 महीने में बीवी बीवी भाग गई मतलब चले गई, भागी नहीं, उसको छोड़ दिया। अभी पेशेंट को पूछा कि वह 3 महीने में क्यों, कैसे, मतलब सेक्सुअल रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम था क्या, नहीं, बोले ठीक है, क्यों भागी, तो उसका कुछ तो अफेयर होगा बोले, तो चली गई, उसका तालमेल कुछ जम नहीं रहा था, मेरे को भी टेंशन था बोले, है कि नहीं। अभी पेशेंट सिजोफ्रेनिया, इट्स अ नोन केस ऑफ सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया मतलब डिल्यूजन, डिल्यूजन भ्रम। तो उसके पेरेंट्स को, जब पेरेंट्स आए नहीं थे, पेशेंट अकेला आया, तो मैं फोन पे बात किया। ये भी ध्यान में रखिए, कभी कभी होता है ऐसे कि पेशेंट खुद ही आता है, पेरेंट्स को एक्सपोज नहीं करता है, उसे नहीं लगता है कि पेरेंट्स आना चाहिए, या कुछ कंडीशन रहती है, क्योंकि पेरेंट्स गांव में थे, एमपी में, तो नहीं ला सकता है, तो मैंने उसके मदर से और फादर से फोन पे बात किया। तो फोन पे बात करना ध्यान रखना। तो उन्होंने बताया कि वाह, इसका जो बिहेवियर था, जो एबनॉर्मल बिहेवियर था, रात को उठ के बाहर चले जाता था, देखता था कि कौन आवाज दे रहा है मुझे, उसको लगता था कि बाहर कोई तो भी बात कर रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं, सब उठ के जाते थे, देखते थे, और कोई नहीं रहता था। तो ये जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन थे, ये डिल्यूजन्स थे कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, और ये बाकी लोग मुझे, मेरे पीछे आ रहे हैं, लोग मुझे सता रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता था, तो वही उसको ये लगता था कि कोई तो भी मुझे वॉच कर रहा है। तो उसमें भी वो डिल्यूजन्स, उसमें या काफी परेशानी होती थी। और बाकी उसका जो नेचर, मतलब वो बीमारी था, उसके वजह से, ऑल दिस थिंग कॉजेस, मतलब उसके वजह से लड़की मतलब चली गई या छोड़ के चली गई उसको। सो दैट क्लियर, सम थिंग्स क्लियर फ्रॉम द पेरेंट्स, बराबर, मतलब जो पेशेंट बताता है, तो हर बार वो सही रहेगा, दैट वी हैव टू बी जज विथ अवर स्किल, वी हैव टू जज स्किलफुली, राइट। सिन्स 1 वीक बिंदास्तपणा नाही आहे, जैसे थोडस व्यवस्थित राहत होतो तसं नाही। अभी वाइफ से बात किया, तो वाइफ का कहना था कि एज अ पर्सन ये शांत है, जल्दी हर्ट हो जाता है, जल्दी ऑफेंडेड हो जाता है, थोड़ा सा कभी कभी बस्ट ऑफ एंगर होता है, चिड़चिड़ करता है, बट वेरी रिजर्व है नेचर से। कुछ फ्रेंड्स नहीं है, होंगे भी तो भी एक दो है, उससे भी बहुत ज्यादा लगाव नहीं है। कॉन्फिडेंस काफी लो है, बार बार एक ही सवाल पूछता है, और बार बार एक ही सवाल, इससे तो परेशान थे घर के लोग। एक ही सवाल, जो भी अगर उसके माइंड में कुछ चल रहा होगा, तो काही होईल तर नाही, काही होईल तर नाही, काही होईल तर नाही, असं करू का, असं करू का, असं करू का, बरोबर आहे नाही, काही त्रास तर नाही होणार, त्रास तर नाही, काही बिमारी तर नाही आहे, बिमारी तर नाही आहे,
तो ऐसा देर इज रिपीटेड वर्ड्स, रिपीटेड थिंग्स दैट फ्रिक्वेंटली ही और ही आस्क, है ना, दैट इसमें सोचिए कि फैमिली मेंबर कितना फ्रस्ट्रेटेड होते हो। मतलब साइकेट्रिक केस रहना पूरे फैमिली मेंबर को तकलीफ देने जैसा है। उनका जो स्टेट होता है वो भी समझने जैसा होता है। सेक्सुअली पूछा। मतलब अभी वाइफ को पूछा कि इसका सेक्सुअल, इनका पेशेंट का सेक्सुअली कैसे है, सेक्सुअल आपके रिलेशंस कैसे होते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसकी डिजायर, मतलब इनकी डिजायर काफी कम रहती है। मतलब हाँ, टेंशन मध्येच राहतो, ये टेंशन में रहता है तो सेक्सुअल कांटेक्ट ज्यादा कुछ होते नहीं है। इसको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ इसको सपोर्ट चाहिए। ये अकेला रह ही नहीं सकता, कुछ भी जाना है, कहीं पे भी जाना है, साथ में चाहिए, साथ में चाहिए, सपोर्ट चाहिए, सतत, मतलब कंटिन्यू इसके साथ में चाहिए। मतलब ये नहाना भी अकेले नहीं कर सकता है। मतलब हे आंघोळीला जातो तर आंघोळ पण एकटा नाही करू शकत, दरवाजा लावून या दरवाजा उघडा ठेवून तिथे पण याला कोणीतरी पाहिजे, राइट? सो दिस इज द केस, दिस इज द इवोल्यूशन मतलब मेंटल स्टेट, life space from the beginning, whatever the data I get, because there is a family member जो मदर फादर पेशेंट के साथ नहीं आए थे, तो वाइफ 3 साल में जो वाइफ ने ऑब्जर्व किया वही बताया। बराबर है, तो पेशेंट पहले से डिस्ट्रेस में और एंजाइटी में था, डरा हुआ था, है ना, तो वो कितना बताएंगे और कितना पूछना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये भी बहुत ये है कि हमारा स्किल्स है कि पेशेंट का स्टेट कैसा है और हमने इंटरोगेशन कौन से लेवल पे करना चाहिए और कितना करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन हमसे पूछ रहे, वन साइडेड नैरोगेशन हो रहा है, पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, पेशेंट इरिटेट हो रहा है, और हम क्वेश्चनिंग ही पूछ रहे हैं। पेशेंट को लग रहा है ये क्या फालतू क्वेश्चन है और कहाँ आके फंस गए। ऐसे में पेशेंट हो सकता है उठ के खड़ा होके भाग जाएगा। बराबर है कि नहीं? अगर पेशेंट को बोले कि हमको कुछ करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा या थोड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे अगर ऐसे पेशेंट को बोले तो वो ऐसे ही डर के भाग जाएगा। उसका हिस्ट्री भी था, आपने देखा देखा है हमने, राइट? सो अंडरस्टैंडिंग द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंगली वी हैव टू टेक अ केस, है कि नहीं? बिकॉज एक 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 किस्सा हुआ था जब मैं पालघर में था, एमडी स्टूडेंट था और मेडिकल ऑफिसर दहीसर में, मतलब मुंबई में एक दहीसर भी है जो उनका ब्रांच है एमएल धवले इंस्टीट्यूट का। तो मेडिकल ऑफिसर, एक ट्यूबरकुलोसिस, सीवियर रिकरेंट ट्यूबरकुलोसिस का केस था, जिसमें पेशेंट ने कुछ 15 दिन पहले ही पूरे अपने रिपोर्ट्स लाके रख दिया था कि तुम इसको स्टडी करो। बराबर है। अभी जब केस का समय आया और केस शुरू हुई, तो ये जो प्राइमरी फिजिशियन है, जो मेडिकल ऑफिसर था, और मैं ऑब्जर्वर था वहां पे, ऑब्जर्वर करके रहते हैं जो साइड में बैठते हैं, चुपचाप सुनते हैं लिखते हैं, सुनते हैं लिखते हैं, कोई इंटरप्ट नहीं करते। तो ये पूछ रहे कि आपको खांसी कब से शुरू हुई, कितने साल से हुई, फिर क्या हुआ, फिर मॉन्टुक्स किया क्या, ये किया क्या, फिर कितने महीने हो गए, क्या हो गए, उसमें स्पुटम का कलर कैसा था, क्या कैसे था। पेशेंट ऐसे एकदम एग्जॉस्टेड, इमेशिएटेड, है कि नहीं, थोड़ा इरिटेट भी होने लगा। फिर भी जो प्राइमरी फिजिशियन का क्वेश्चनिंग है, बम्बार्डिंग है, चल ही रहा था, मैं चुपचाप एज ऑब्जर्वर चुपचाप देख रहा था। और कुछ मिनट बाद, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बाद, पेशेंट उठा और सीधा भागने लगा लिटरली। क्योंकि मैं जूनियर था, मेडिकल ऑफिसर बाजू में बैठे थे जो प्राइमरी फिजिशियन, मैं भी पेशेंट को क्या हुआ करके उसके पीछे भागने लगा। मतलब काफी दूर तक भागा और पेशेंट मिला ही नहीं। मतलब जो एग्जॉस्टेड था वो इतना परेशान हो गया वो क्वेश्चनिंग से कि उसको उठ के वो छोड़ना पड़ा वो जगह। मतलब नहीं, अभी वो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहा था कि नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे।
उसका कहना था कि ऑलरेडी मैंने सब भेजा है, सब लिखा है कि वो तब सिम्टम्स क्या थे, कौन से डॉक्टर को दिखाया, कौन सा टेस्ट किया, फिर आप क्यों पूछ रहे हो? So this might happen. We have to understand the state of patient, physical and mental, and we have to act accordingly. तो जब डिस्ट्रेस में पेशेंट रहता है, और ऑब्जर्वेशन मस्ट बी एक्टिव, ऑब्जर्वेशन पार्ट ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो अब ये केस एनालिसिस कैसे करेंगे? सिम्टम सिम्टम समझे, इवोल्यूशन समझा, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसका डर और कैसी पर्सनालिटी थी फ्रॉम द बिगिनिंग, और अभी 2-3 महीने से कैसे सिम्टम्स दूसरे डेवलप हुआ, ज्यादा फोबिया डेवलप हो गया, फियर डेवलप हो गया, अभी वो फियर के पीछे क्या कारण था वो भी समझा, राइट? सो अभी देखते हैं कि इसको एनालाइज कैसे करते हैं। अभी एनालिसिस ऑलवेज सी इन एच एंड एवरी केस। एक्यूट होगा तो थोड़ा हम देखते हैं कि सिर्फ डिसीज इन पर्सन देखते हैं एक्यूट में, और पर्सन इन डिसीज देखते हैं। मतलब हम देखते हैं कि वो पर्सन में क्या बीमारी, वेदर इट इज एक्यूट और क्रोनिक। और एक्यूट कंडीशन में हम देखते हैं कि वो डिसीज कंडीशन में वो पर्सन कैसा है, मतलब मेंटल स्टेट, कि कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे पोस्चर है, कैसे बता रहा है, उसका मेंटल स्टेट क्या है, किस कारण बीमारी हुई है, रिसेंट कॉज अगर है, एंजाइटी है, फियर है, एंग्विश है ना, मानिया है, व्हाट एवर इट में बी। अभी थर्ड जो होता है, जो क्रोनिक केस में हम देखते हैं, पेशेंट एज अ पर्सन और पर्सन एज अ होल, राइट? सो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको क्रोनिक केस में पेशेंट का डिस्पोजिशन समझना है, सेंसिटिविटी समझना है, और केस के न्यूक्लियस तक पहुंचना है, उसका स्टेट ऑफ माइंड भी समझना है। हमको सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड पे भी नहीं देना है, और सिर्फ डिस्पोजिशन पे नहीं देना है, हमको कॉन्जॉइंटली देना है, कंबाइंड देना है, इन ऑर्डर टू मेक इट द जेनेटिक कंस्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन, राइट? अभी इसका डिसीज डायग्नोसिस क्या है? होपफुली यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डिसीज दैट पेशेंट सफर विथ, साइकेट्रिक डिसीज क्या है, और फिजिकल बॉडीली डिसीज क्या है। पर्सन डायग्नोसिस हमको देखना है, और माइजमेटिक डायग्नोसिस हमको करना है। अभी ये जब भी हम केस एनालिसिस करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द someone says it is the panic attack. Okay, so hmm, फिर से क्यों आ रहा है? हाँ, केस एनालिसिस, राइट? तो डिसीज डायग्नोसिस करना है केस एनालिसिस में। क्या डिसीज है? पैनिक अटैक, इज इट पैनिक अटैक? हमने पैनिक अटैक देखे, हमने एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या क्या आता है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। आई थिंक डोंट नीड टू अगेन एक्सप्लेन दैट थिंग, अननेसेसरी अपना समय चले जाएगा। फिर हमको माइजमेटिक डायग्नोसिस करना है। वंस वी नो द पैथोलॉजी, वेदर इट इज अ फिजिकल पैथोलॉजी और मेंटल पैथोलॉजी, फिर हम उसको माइजमेटिकली कैटेगराइज करेंगे कि ये डिसीज कौन से माइजम में आता है। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सन। In order to do the person diagnosis, we need a life space analysis. Life space को analyze करेंगे, then miasmatic analysis, then miasmatic totality is what we derive. The totality is quite differ from the miasmatic totality. When we analyze the miasm properly, then try to evaluate the totality with respect of, in the light of miasm. सो डिसीज डायग्नोसिस, अभी एंजाइटी डिसऑर्डर है, फोबिया है, पैनिक अटैक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, क्या है? एनीवन प्लीज पुट द लाइट ऑन द डायग्नोस्टिक पार्ट।
Someone says it is the panic attack. Is it the attack that since the 2.5 year attack रहता है? Is there is symptoms of panic attack? Whatever we discuss. चलो अब फिर से देखेंगे. फोबिया में क्या रहता है? एगोरोफोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया. पैनिक अटैक में देखो, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, फियर, लॉस ऑफ कंट्रोल, स्वेटिंग, chilliness, trembling, nausea, chest tightness, shortness of breath. It is a sudden episode. It must be episodic, right? जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर लास्ट टाइम हमने देखे. ओसीडी में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी काफी सारे ट्राइकोटिलोमैनिया. इफ समवन, मतलब आपने देखा होगा कि किसी को, बंदे को ऐसे आदत रहती है या हैबिट रहती है या प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि वो अपने बाल नोचता है. और अपने तो नोचता ही है, दूसरे को भी नोचता है. तो अपने नोचता है, दूसरे तो अपने बाल नोचने नहीं देंगे. बराबर है कि नहीं? तो फैमिली मेंबर काफी इरिटेट हो जाते हैं. ऐसा ही एक पेशेंट था मेरा, जिसमें वो अपने बाल तो नोचता था तो बाल्ड स्पॉट हो गए थे, जैसे एलोपेशिया एरियाटा रहता है. पर वो एलोपेशिया एरियाटा एज सच नहीं था. दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्राइकोटिलोमैनिया. इट कम्स अंडर द ट्राइकोटिलोमैनिया वेयर देर इज अ mania of pulling the hair, और इट इज कॉल्ड एज द हेयर पुलिंग डिसऑर्डर. बाल नोचता था तो पूरा उस सरफेस मतलब बाल्ड हो गया था. और दूसरे की भी बाल नोचता था तो उनको मार, पेशेंट को मारने लगते थे फैमिली मेंबर कि ऐसा मत कर, दूर हो. मतलब कोई भी ऐसे बैठा है तो उसके पास जाएगा और बाल नोचेगा. समझ गए कि नहीं? सो दिस इज द, ये भी ऐसी बीमारी होती है ना. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में पैटर्न ऑफ अनवांटेड थॉट्स, कंटिन्यूअस थॉट्स रहते हैं, अनवांटेड थॉट एंड फियर, that called as the obsession, and that leads you to do repetitive behavior, that leads the patient to do the behavior or to act according to the thought. मतलब जो विचार आए तो गंदगी है तो साफ करना है, तो साफ करना ही एक्ट हो गया, और थॉट जो रिपीटेड आ रहा है वो ऑब्सेशन हो गया. तो ऑब्सेशन and act means compulsion. That's why it is called as the obsessive compulsive disorder. Now, this obsession and compulsion interfere with daily activities and causes significant distress. This line is very important. You may try to ignore or stop. The patient may try to ignore or stop that obsession, that thought, but that only increase the distress and anxiety. पेशेंट इज रियलाइज, क्योंकि ये न्यूरोटिक डिसीज है, पेशेंट को पता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही नहीं है. बार बार हाथ धो रहा हूँ, बार बार वही विचार आ रहे हैं, डरावने विचार आ रहे हैं, ऑब्सेस हो गया हूँ. ऐसे लगता है कि वो चेक नहीं किया, ऐसे लगता है कि वहां कुछ है, ऐसे लगता है कि ताला लगाया नहीं है. तो थोड़े दूर जाएगा, फिर से वापस आएगा, फिर चेक करेगा. बर्तन धोए हैं, पर जब भी खाना खाने बैठते हैं, थाली लेते हैं, मतलब खाली थाली, तो फिर धोने जाएगा, फिर हाथ धोएगा, फिर से हाथ धोएगा, फिर आएगा और फिर देखेगा कि अरे कुछ तो है, फिर से हाथ धोने जाएगा. So this repeated behavior, so thoughts and action, that is the obsession and compulsion. You get, ultimately the patient feel driven to perform compulsive act to try to ease. मतलब उसका एंजाइटी इतना बाउंड होता है कि उसको अपनी एंजाइटी रिलीज करना ही पड़ता है by the action, by the compulsive behavior. Despite effort to ignore or get rid of bothersome thought or urge, they keep coming back. This leads to more ritualistic behavior, the vicious cycle of OCD. है ना? उससे वो बाहर निकल नहीं सकता. यहाँ पे ऑब्सेशन में क्या होता है? फियर ऑफ कंटेमिनेशन, डाउटिंग, नीडिंग थिंग्स ऑर्डरली एंड सिमेट्रिकल, एग्रेसिव और हॉरिफिक थॉट्स अबाउट लॉसिंग कंट्रोल, हार्मिंग योरसेल्फ एंड हार्मिंग अदर्स. There is unwanted thoughts, sexual or religious, on the religious subject. डिप्रेशन पता ही है हमको. सो डायग्नोसिस इज नॉट अ पैनिक बट इट इज द ओसीडी विद द फोबिया. मतलब सीवियरिटी ऑफ फोबिया इज सो, तो ओसीडी इज श्योर with the there is a phobia and the acute on chronic fissure, right? Is it okay? Is there any confusion regarding the diagnosis? It is not, someone might think of because there is a fear or intense fear that comes under the panic.
but that panic manifestation expression is different. There is a fear, intense fear, but with this there is a constant checking, rechecking, dirtiness, washing, है ना? अगर हम पूरा LSMC देखेंगे तो हमको समझेगा कि this patient goes towards the not the panic but it is the OCD, right? So this is the clingy person, है ना? Clingy person, someone says Dr. Vichitter Singh, is it? This is clinging. So is there any rubrics regarding the clinging? Or do I take the clinging as an important rubric here? Clinging to person, what miasm they possess, clinging, clinging कौन से miasm में आएगा? So let us see on the basis of, see, ऐसा नहीं है कि मैं केस प्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं बहुत ओवर एक्सपर्ट हूँ, है ना? एक्सपर्ट बोल सकते हैं पर ऐसा नहीं कि हर केस को एक डोज दे कि केस सॉल्व हो जाता है, या फिर पहला जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो फाइनल हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है. दैट डजंट डन इन ईच एंड एवरी केस. बराबर है कि नहीं? कभी कभी पेशेंट समझने में, रूब्रिक समझने में हमको समय लगता है. वी नीड अ टाइम टू अंडरस्टैंड. और जो हम सोचते हैं और वैसे हम रूब्रिक को कन्वर्ट करते हैं, तो जब रिजल्ट नहीं मिलता है, because whatever you are thinking or what you are deriving or what you are finalize the remedy, whether it is right and wrong, it doesn't decide by you or any doctor. That decide by the patient. आपकी रेमेडी जो दी है वो कितनी सही है, टारगेट पे लगी है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करता है? ये पेशेंट डिसाइड करता है. जब पेशेंट बताता है कि आई एम फीलिंग बेटर, आई एम नॉट फीलिंग बेटर, द थिंग्स आर रिमेन सेम, ये थोड़ा ठीक हुआ है, ये बढ़ गया है, इतने इसमें थोड़ा सा रिलीफ हुआ है पर बाकी सिम्टम वैसे ही है, then you realize that कि whatever the medicine you prescribe or selected is not up to mark, so need to reevaluate the totality. बराबर है कि नहीं? कभी कभी हमको फिर से डाटा या केस लेना पड़ता है. सो कंसिडरिंग द फ्राइट, फ्राइट कहाँ पे? जो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन, और रिसेप्शनिस्ट ने बोला है कि ऑपरेशन, मतलब डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन और डर गया, उसके बाद मतलब थर थर कापायला लागला, सी उसका डर कितना था. तो उसको लगा कि ऑपरेशन में काटेंगे, है ना, बेहोश करेंगे. तो डिल्यूजन, इंजर्ड ऑफ बीइंग, आई हैव टेकन बिकॉज ऑफ दैट एक्सप्रेशन एंड एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट. अभी ये अगर दो रूब्रिक है तो मेडिसिन कौन सी आना चाहिए? इज देयर एनी क्लू? कौन सी मेडिसिन आएंगी इसमें? द मेडिसिन इज ट्रेमोनियम, कंसिडरिंग द पेशेंट्स कंडीशन, है ना, द साइकेट्रिक डिसऑर्डर, द इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम्स, है ना, and the dynamic medicine. I have given the 10 m drop start and SL3 hourly, and I call the patient after 1 week. Don't give such a patient 1 month medicine, 2 month medicine, है ना? हो सकता है कि कोई अगर इतना 101% श्योर है तो हो सकता है कि वो दे और बोले पेशेंट को कि 1 महीने बाद आओ. सच a patient who is in a distress, who is in the anxiety, phobia, we need to evaluate the patient, मतलब as in a short period of time. मतलब आप 4 दिन में देखो, एक हफ्ते में देखो, एटलीस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में देखो, राइट? नाउ आफ्टर गिविंग द स्ट्रेमोनियम, देखिए एनल रीजन में जो पेन था, मतलब फिशर था, अभी फिशर, हाँ, फिशर था, उसका पेन रिलीव हो गया. पर बाकी जो सिम्टम्स थे, डर था, बाकी जो थॉट्स थे, चल रहा थॉट प्रोसेस चल रहे थे, है ना, रात में उठना था, क्लिंगिंग था, मतलब सपोर्ट चाहिए था, डिपेंडेंसी बढ़ गई थी, वो सब वैसे ही था. अगेन इट इज, अगर हम फॉलोअप को इवेल्युएट करेंगे तो फिजिकल सिम्टम्स कम हो गए और मेंटल सिम्टम एज इट इज है. दैट गिव्स द क्लू दैट द रेमेडी इज रॉन्ग. पर मुझे लगा कि इतना रिलीफ पेशेंट को लगा है, पेशेंट कुछ तो फिजिकल लेवल पे सेटिस्फाइड है, तो मैंने फिर से एक डोज रिपीट किया आफ्टर 1 week. राइट? आर यू विथ मी? अगेन आफ्टर 1 week, दैट इज सेकंड फॉलो,
पेशेंट accompanied with the mother. पेशेंट अपने मम्मी को लेके आए, शायद मैंने बोला होगा कि आप मदर को लेके आइए, उनसे भी बात करना है। अभी मदर बोलने लगी कि बालपन मतलब बचपन में अब हाँ, मदर को उसके स्टेट के बारे में, मदर स्टेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूछना था कि ऐसा क्या हुआ कि ये एकदम इतना डरपोक पैदा हुआ, बराबर है कि नहीं। तो उसने बताया कि अपेंडिक्टोमी हुआ था 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, एंड द हस्बैंड वाज वेरी अल्कोहलिक, और मैं बहुत घबराती थी, बहुत घबराती। तो मैं हाँ, तो मैं घबरा थी, और बाद में जब डिलीवरी हुई उसके बाद भी जब हस्बैंड पी के आते थे, शोरगुल करते थे, डांटते थे, गाली गलौज करते थे, तो मैं तो घबराती थी, ये बच्चा भी घबराता था। और इसको स्कूल में ऐसा काफी घंटे तक बंद करके रखते थे, मतलब जो पेशेंट ने बताया, फिर से मम्मी ने उसको रिपीट किया। अभी ये भी जैसे मम्मी है, ये भी रात को ऐसे हुआ था कि सासू मनाली बाहर से, मतलब वो मदर इन लॉ उसको बोली कि तुमको बाहर का लगा हुआ है, क्योंकि रात में तुम उठ के ऐसे चिल्लाते हो, वो मदर को बोली। तो ये इसका पेशेंट का जो नेचर है वो थोड़ा मन मिलाऊ, मतलब इजीली मिक्स होता है, ये अकॉर्डिंग टू मदर। इसको गुस्सा नहीं आता है, पर सब मतलब इसको सब चाहिए, पास में चाहिए। मतलब हर इसमें और हर कहीं पे भी जाओ, घर में भी रहो, तो इसको मम्मी साथ में चाहिए। अभी इतना साथ में चाहिए कि अभी भी ये अकेले सोता नहीं है, मतलब उस मुझे उसके साथ में सोना पड़ता है। सी द 30 years male child who is married wants mother to be with him while sleeping. सी द क्लिंगिंग, मतलब डायनामिक कैसा होगा आप सोच सकते हैं कि शादी के बाद बीवी पास में रहना चाहिए, है ना, तो बीवी सोचिए कि एक साइड में या मदर एक साइड में। सी द इंटेंसिटी ऑफ क्लिंगिंग नेचर और डिपेंडेंसी एंड द फियर, फोबिया। त्याला आईज पाहिजे, मतलब उसको मदर ही चाहिए होती है कंटिन्यू, है ना। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सिम्टम्स, द फिनोमिना। पेशेंट अभी भी चाइल्डिश बिहेवियर है, मतलब वो डेवलपमेंट मैच्योरिटी कहाँ तक गया है पेशेंट का। अभी हम ये जो मदर ने हिस्ट्री दिया है उसके बेस पे एक टोटल फिर देखेंगे कि स्ट्रेमोनियम तो काम नहीं किया, फिर अभी क्या करेंगे। कैसा करेंगे, अभी कौन सा मेडिसिन देंगे। स्ट्रेमोनियम फिर से देना है, टेनेम 2 बार रिपीट किया है, देयर इज नो चेंज, दैट्स व्हाई मदर कम्स एंड टेलिंग द सिम्टम्स। व्हाट मेडिसिन यू लाइकली प्रिस्क्राइब ऑन व्हाट बेसिस, जल्दी बताइए। इज इट ऑल आर विथ मी अलर्ट। नहीं पता। देखिए, सोचिए कैसा क्या बिहेवियर है, कैसे बिहेवियर है, मेडिसिन कैसा ढूंढे। फ्राइट एलिमेंट्स फ्रॉम तो है, मतलब वो परसिस्टेंटली है, फ्राइटन इजीली है, क्लिंगिंग टू मदर, यहाँ पे नया सिम्टम लिया लिया जो डिपेंडेंसी, और वन ऑफ द डॉक्टर्स शेयर की ये क्लिंगिंग नेचर है पर्सन का, ये पेशेंट का। तो क्लिंगिंग इज द रूब्रिक विच इज द हायर हाई लेवल का रूब्रिक है क्लिंगिंग। इट इज नॉट अ साइकोटिक रूब्रिक, इट इज हाई लेवल रूब्रिक। क्लिंगिंग टू मदर, anxiety preventing sleep, very dependent and timid person, highly timid, aversion to milk। डिजायर से ज्यादा एवर्शन लेना जरूरी है। और हम जब ये रेपर्टराइज किया मैंने, तो पल्सिटिला कालीकार मैग्न्यूर, और उसका जब डिस्पोजिशन स्टडी करते हैं कि हाईली टिमिड, हाईली डिपेंडेंट, शाय, लड़कियों से बात नहीं करना, है ना, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, डरना, घबराना, बराबर। अभी भी मदर चाहिए, मतलब इतना चाइल्डिश बिहेवियर, मैच्योरिटी नहीं है। सो आई प्रिस्क्राइब द which you want to prescribe, which remedy you want to prescribe, anyone? I prescribe the pulsatilla.
दो रेमेडी आ रहा था, तो पल्सिटिला 10 ml ड्रॉप स्टार्ट फॉर देन एसएल फॉर 1 वीक। अभी उसके बाद का फॉलोअप में स्लाइटली पेशेंट टेलिंग की थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, डर थोड़ा कम हो गया और नहा रहा है अभी। मतलब जो नहाता भी नहीं था और नहाते वक्त किसी को साथ में लेके जाता था, मतलब बीवी या मदर को, अभी वो उतना हिम्मत कर रहा है कि जा रहा है, दरवाजा तो खुला है पर नहा रहा है खुद होके। The improvement is not satisfied up to mark. That's why I prescribe again. Repeat the dose of Pulsatilla 10 ml, and then because there is a slight improvement, I thought कि इस इनको कुछ थोड़ा समय ज्यादा देना चाहिए, not 1 week, है ना। तो 2 weeks के लिए एसएल दिया। अभी 2 weeks बाद का फॉलोअप देखे। स्लीप इंप्रूव, एंजाइटी एंटीसिपेंट, स्लीप बिफोर चेकिंग, रीच चेकिंग, स्लाइड इंप्रूव। देर इज इम्प्रूवमेंट बट नॉट इम्प्रूवमेंट, बट यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। पेशेंट स्लाइटली या फैमिली मेंबर थोड़े सेटिस्फाइड लग रहे हैं कि पेशेंट में कुछ तो भी फर्क है। दैट्स व्हाई आई प्रिस्क्राइब द सैक्लैक आफ्टर दैट फॉर 2 weeks। अभी ये 2 हफ्ते बाद जब आया, 30 जुलाई और 22 फॉलो, तो फॉलोअप ऐसा था कि उसको कांस्टेंट कंपनी चाहिए थी, फियर एंजाइटी काफी था, बेचैनी थी, कोई तो भी साथ में चाहिए, टॉयलेट में भी जा रहा तो कोई तो भी साथ में चाहिए, यहीं पे चाहिए, यहीं पे खड़ा रहे, मेरे पास ही खड़े रहे। शॉप में भी जा नहीं रहा था, शॉप में भी गया तो बड़बड़ कर रहा था, नींद नहीं आ रही थी उसको, डरावने सपने आ रहे थे। अभी फिर से पूछा मैं, आई वांट टू री इवेल्युएट द केस, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हमको भी फ्रस्ट्रेशन या थोड़ा टेंशन आता है कि ये केस तो नहीं, केस ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये टोटली और सोलली डिपेंड्स ऑन होम्योपैथी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस इफ यू सी, ऐसे केसेस जो ओसीडी, एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक अटैक, हो सकता है कि ये एलोपैथ को दिखा के फिर एलोपैथिक मेडिसिन छोड़ना है, फिर आते हैं हमारे पास। देन इट इज अगेन इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप और रिड्यूस दैट मेडिसिन, है ना, थोड़ा अपने लिए परेशानी होती है। But if your remedy is right, if your remedy is minimum exactly, then it is not difficult task कि reduce gradually reduce करना। ये सिर्फ ध्यान में रखना कि कोई भी साइकेट्रिक मेडिसिन, स्पेशली एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेसिव, इवन एंजाइटी वाली और स्लीपिंग पिल्स भी सडनली स्टॉप नहीं करना। डोंट स्टॉप एनी साइकेट्रिक मेडिसिन। जब पेशेंट आपके पास आता है, साइकेट्रिक मेडिसिन XYZ लेता है ऑलरेडी, और जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करते हो, दो पेशेंट हैविंग विश टू stop that medicine, don't allow the patient to stop allopathic medicine suddenly, unless and until you convince that your remedy is acting positively. Then only reduce the dose or taper the dose slowly and slowly. Because ओवर कॉन्फिडेंस में जब कोई डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, सडनली साइकेट्रिक मेडिसिन स्टॉप करता है तो विड्रॉवल सिम्टम्स इतने भयानक होते हैं, पेशेंट को लगता है ये होम्योपैथिक मेडिसिन लिया, इससे एकदम एग्रावेशन हो गया। क्योंकि ये सोसाइटी में या समाज में ये होम्योपैथी के बारे में ये बहुत चलन है कि होम्योपैथिक मेडिसिन पहले बढ़ाता है फिर कम करता है, पेशेंट छोड़ देगा। पेशेंट ऐसे पेशेंट नहीं सहन कर पाएंगे और छोड़ देंगे आप। सो ऑलवेज ट्राई टू टेपर द डोज स्लोली। वंस यू कन्विंस और फील दैट योर रेमेडी इज रजिस्टर्ड श्योरली। यहाँ पे तो कुछ सवाल ही नहीं था वैसे, राइट। यहाँ पे ऐसे कुछ सवाल नहीं था कि पेशेंट बा फिर से मतलब दूसरे मेडिसिन में है। तो व्हाई देर इज अ सो मच फियर, क्योंकि फियर ज्यादा दिख रहा था ना। तो ऑपरेशन साठी सांगितलं फिशरचं तेव्हापासून, मतलब जब ऑपरेशन के लिए बताया फिशर है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब से मेरे को ये डर ज्यादा पैदा हुआ अक्षरशः। मतलब वो कांपने लगा और कंटिन्यू रोने लगा। वहां पे भी रोया और गाड़ी पे जब उसके भाई के साथ या जो भी साथ में गया था उसके साथ, तो कंटिन्यू बेचैनी और रोना चल रहा था। तो जब वो चेंबर के बाहर आया डॉक्टर के, तो उसने रिसेप्शनिस्ट को पूछा कि ऑपरेशन में क्या करेंगे, बेहोश तो नहीं करेंगे, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन तो नहीं लगाएंगे। तो उसने रिसेप्शनिस्ट ने कहा आप ऑपरेशन करेंगे तो आपको एनेस्थीसिया देंगे, बेहोश कर देंगे।
तो उसको बेशुद्ध होना या बेहोश होने, उसमें एकदम डर गया कि बेहोश क्यों करेंगे, बेहोश नहीं चाहिए, कुछ हो गया तो, मैं मर गया तो, नहीं उठा तो, जागच पाहिजे, कॉन्शियसच पाहिजे, बेहोश नहीं चाहिए, बेहोश नहीं होना है। शरीर को कुछ हो गया तो, शरीर को कुछ हो गया तो, कुछ तकलीफ हो गई तो, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गया तो क्या होगा? So that's why that's this thoughts or chain of thoughts continue, which leads to the constant fear, right? And with this all type of the symptoms, अभी ये fright, fear of death and delusion, injury, receive, will be, ये जो symptoms है उस पे से मैंने rubric को convert किया and come to the another medicine after pulsatilla, that is opium, because by chance कि pulsatilla ने registration initially किया and then उसने काम नहीं किया फर्दर, पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ रहे थे। सो आई गिवन द ओपियम लेटर ऑन। हाँ, ओपियम देने के बाद क्या हुआ देखिए, स्लीप इंप्रूव, सडन वेकअप ड्यू टू फियर थोड़ा थोड़ा कम हुआ, ओपियम टेनिम दिया था। फिर 15 दिन बाद, 15 दिन बाद उसको आराम लगा, पहले इसमें फर्स्ट डोज में है ना, यहाँ एक हफ्ता अच्छा रहा, अच्छा रहा मतलब स्लाइड फियर और एंजाइटी कम रही। फिर से जब 15 दिन का मेडिसिन दिया, हैड एन इंक्रीज सिम्टम ऑफ एंजाइटी एंड फियर, फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्करेज, अभी एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मतलब और इंटेंस सिम्टम्स आ गए। तो डोज भी रिपीट करना याद ये नहीं था, मरून जायचे, अभी तो सुसाइडल थॉट्स आने लगे पेशेंट को, मतलब फैमिली मेंबर भी अभी डर गए, फ्रस्ट्रेट हो गया, डिस्पेयर हो गया, होपलेस हो गया, अभी क्या करूं, कैसे करूं, कुछ पॉजिटिव नहीं है, मेडिसिन से भी कुछ हो नहीं रहा। तो आखिर में किसी ने फिर सजेस्ट किया, तो वो साइकेट्रिस्ट को दिखाया, किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया। अभी तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं तो भी फिर हमको लगता है कि वी आर नॉट गिविंग द जस्टिस टू द पेशेंट, बराबर है। और साइकेट्रिस्ट ने पेशेंट को मेडिसिन दिए, टैबलेट डिफ्रान, है ना, एंजाइटी डिसऑर्डर, कंसिडरिंग एंड एंजाइटी डिसऑर्डर एंड फियर, डिफरान दिया, अभी ठीक है, फील्स वेरी। अभी इसके बाद क्या हुआ, डिफरान दिया, उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट कर दी, बट आफ्टर टेकिंग दिस साइकेट्रिक टैबलेट पेशेंट फील्स वेरी स्लीपी, ड्रॉजी, एंड देयर इज नो डिजायर टू वर्क, but the constant the thoughts was constant and continuous about the same thing. He repeatedly counting 1 2 3 4 before talking to someone. This is the additional symptom again. घान होंगी, डर्टीनेस, स्वच्छता, क्लीनलीनेस, इसके बारे में भी बहुत सोचने लगा, बार बार हाथ धोने लगा, और कांस्टेंट उसको कंपनी चाहिए चाहिए थी, ब्रश ब्रश भी कर रहा है तो भी साथ में खड़ा चाहिए, बाथरूम में भी चाहिए। तो ये डर का माहौल बना ही था, और भीति डर डर था ही। इवन द डिफरेंट डजंट produce the positive effect, in spite it produce the negative effect in the form of drowsiness, in the form of drowsiness। अभी फिर क्या करते, भीतीस भीती, ब्रश नहीं, आंघोड़ नहीं, नहाना नहीं, कोई तो भी साथ में चाहिए, है ना। फैमिली एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई कि साइकेट्रिस्ट के ट्रीटमेंट के बाद भी इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा, और इसका कंडीशन अभी और वर्स होने लगा है, अभी क्या करें, राइट। फिर वो जोशी डॉक्टर जो जो सर के पास ले गए थे साइकेट्रिस्ट, फिर लेके गए सर ने, डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज करके दिए, मोर अभी थोड़ा मोर डीप दिया, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटी, फ्लूनिल, एपिट्रिल, 2 हफ्ते लिया। मैंने बोला आप लीजिए इसको, मैंने एसएल दिया। सी अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम यहाँ पे जब मेडिसिन चेंज किया डॉक्टर ने, और मैं अपना मेडिसिन देता, तो यहाँ पे समझ में नहीं आता कि अगर पेशेंट में इम्प्रूवमेंट हुआ तो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और कौन से मेडिसिन से हुआ, समझ गए कि नहीं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये डिसीजन लेना है कि उन्होंने हाई डोज दिया है, मेडिसिन को बढ़ा के दिया है, तो हम देखते हैं कि ये मेडिसिन से उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो 2 वीक्स के लिए एसएल दिया, अगेन 2 वीक्स के बाद जब, सॉरी 1 वीक के बाद जब आया, तो वैसे ही था, निगेटिव थॉट्स थे, डिजायर, नो डिजायर टू वर्क, लॉक झाल्यासारखं, लॉक हुए जैसा लगता था, है ना, मतलब सिम्टम्स, मतलब वर्स ही हो रहा था, मतलब केस बाहर नहीं आ रहा था,
इवन दो द पेशेंट इज ऑन द साइकेट्रिक मेडिसिन। तो अभी क्या करना है? दिस इज द टाइम इवन द डॉक्टर्स गेट टेंस कि कैसे। अभी हमको डीपली इसको समझना पड़ेगा। हमको ऐसी जो मेडिसिन हमने अभी तक सिलेक्ट किए दैट वाज रॉन्ग, दैट वी हैव टू रिफॉर्म द टोटलिटी, वी हैव टू रिकंसिडर द पर्सन अंडरस्टैंडिंग, राइट। इसमें अभी देखते हैं कि हम इसको अभी प्रॉपर वे से स्टडी करते हैं फिर से। माइजमेटिक डायग्नोसिस इसमें क्या है? इट इज अ फ्रैंक सिफिलिस। If it is the OCD where the thought is out of control and phobia is intense, thoughts is repeated, and the person don't having the control over his own thoughts, this is the frank syphilis. So we are dealing with the frank syphilis. सिफिलिस एक होता है, दूसरा फ्रैंक सिफिलिस उससे हायर। अभी इसको लाइस्पेस को हम थोड़ा सा और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने प्रॉपर उसको एलएसएमसी फॉर्म में मतलब लाइस्पेस टेबल को बनाया और इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की। दिस टू थिंग्स और डाटा इज आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस, दैट्स व्हाई आई वांट टू हाईलाइट दैट डाटा एंड वांट टू इंटरप्रेट। मतलब जो मम्मी ने उसको बताया कि अभी भी वो मेरे साथ ही सोता है, त्याला आईच पाहिजे, मम्मी चाहिए, इवन ड्यूरिंग स्लीप उसको चाहिए, मम्मी चाहिए, वाइफ चाहिए, बेचैन रहता है, कोई ना कोई साथ में चाहिए, इवन टॉयलेट को गया तो भी साथ में चाहिए, खड़ा चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट कंपनी चाहिए। और डर देन व्हाई फियर? बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन। अभी ऑपरेशन से क्यों? कि रिसेप्शनिस्ट को पूछा, फिर उसने ऑपरेशन बताया, फिर उसने एनेस्थेसिया बताया, फिर उसको लगा कि अगर बेशुद्ध हो गया, अगर वो अनकॉन्शियस हो गया तो कुछ उसके शरीर को कुछ तो होगा नहीं। मतलब फियर ऑफ इंजुरी जो था कि उसके शरीर को कुछ तकलीफ हो जाएंगी या कुछ हो जाएगा, वो भी सही था। तो अब हम अगर इंटरप्रिट करेंगे, कैसे हम इस चीज को इंटरप्रिट करते हैं? फर्स्ट, we need a frank syphilitic rubric in order to crack this case. अभी हम अगर ऐसे rubric लेते हैं, clinging is again not that much intense rubric to match the whole case and to crack the case, है ना? Clinging to mother. So what is that understanding we are lacking? What is that rubric we are lacking that is fit to the whole case? Is anyone wants to share? Is there anyone wants having the view, other view? So after a detailed study, जैसे हम पहले इसको, फिर मुझे लगा कि नहीं, ये केस हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए या पेशेंट होम्योपैथी से ठीक होना चाहिए। तो जब रात में मैंने शांति से जब केस को इवेल्युएट किया, एलएसएमसी बनाया, इंटरप्रिटेशन किया, रूब्रिक्स को ढूंढा कि कौन सा रूब्रिक्स है जो इसमें फिट बैठना चाहिए, और जो रूब्रिक्स मुझे हाथ लगा आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, जो जब रूब्रिक मुझे हाथ लगा और वो मुझे समझा कि दिस रूब्रिक इज फिट टू दिस केस, तभी मुझे ऐसा लगा कि अभी ये मेडिसिन जो आई है इस रूब्रिक्स थ्रू, ये मेडिसिन पेशेंट को टोटली ठीक कर देंगी। तो जो पॉजिटिव थॉट्स या एनर्जी जो हमारे इसमें आती है, जब हम उसको एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, हम अपने एफर्ट्स उसमें डालते हैं, तो हमको रियलाइज हो जाता है कि दिस इज द राइट रूब्रिक एंड दिस इज द रेमेडी विच क्योर द पेशेंट। मतलब आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम स्टडी करते हैं, पेशेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट के सामने जो हम रेमेडी को स्टडी करते हैं तो आ जाती है, ठीक हो जाता है पेशेंट, पर मोस्ट ऑफ टाइम इन डिफिकल्ट केसेस वी नीड एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो जब हम स्टडी करते हैं तो फिर देखता है कि ये जो मेडिसिन है, यहाँ दैट इज द राइट, एब्सोल्युटली राइट रेमेडी, है ना? हम सोचते हैं, हम देखते हैं, हम फील करते हैं उसको, और जब हम मेडिसिन ऐसे पेशेंट को देते हैं इस तरह से, तो देर इज डेफिनेटली अ क्योर हैपन। सो यहाँ पे जो रूब्रिक को इंटरप्रेट किया गया, दैट इज द मैनिया मैडनेस, सच काइंड ऑफ बिहेवियर विच इज आउट ऑफ proportion, दिस इज द काइंड ऑफ delirium विच इज द फ्रैंक सिफिलिस। delirium, अगर delirium क्लिंगिंग होता है तो शायद वो रूब्रिक लागू होता। then delirium again manifest in the form of mania,
Delirium is nothing but the mania, madness. So I have taken and seen the rubric mania, madness, held, desire to be, hold, desire to be. पकड़ के रखो, साथ में चाहिए, पकड़ के कंटिन्यूअसली साथ में चाहिए. तो held, desire to be, कंटिन्यूअसली 24 घंटे. बाथरूम में जाओ, सोने जाओ, ब्रश करो, एनी टाइम. सो मैनिया, मैडनेस, this is the form of delirium, held desire to be, hold desire to be, which is the highly frank syphilitic rubric. Any type of mania rubric is the syphilitic rubric, frank syphilitic rubric. Any type of delirium rubric is the frank syphilitic rubric. Understand this. And another, what we conclude before, the delusion, injury will receive. It is not injured. See, the injured means, being injured means the process, under process is going on. This is कि अगर मैं ऑपरेशन करूंगा तो क्या होगा, दिस इज द फ्यूचर इवेंट दे प्रेडिक्ट. तो एंटिसिपेशन भी हम अगर बोलेंगे तो दिस इज क्वाइट वेरी स्मॉल टू फिट दिस केस. So there is a delusion will receive the injury. This is the psychosyphilitic to syphilitic, है ना? But the one rubric is sufficient to understand the remedy. And the remedy come up, the miasmatic totality come up is the mania, madness, held, desire to be, holding head. This is the same rubric. Delusion will receive the injury, company desire, ये तो just understanding के लिए dependent. The rubric is the 3 rubric only, or 2 rubric, mania, madness, held, desire to be, and the delusion will receive the injury. Is it agree with the rubric I have taken or selected after a study, after this long efforts? This is the rubric which fit the case. This is the mania, this is the delirium, where the patient wants to hold anytime, every time. And the remedy come up is the arsenic. The rubric which covers the mania, madness, desire to be, this rubric cover only one and only one remedy, that is the arsenic. Try to see here, we are not taking the symptoms like checking, rechecking, obsession, compulsion, anxiety, fear, anticipation. It has no value, and the remedy come up is the very common remedy which is difficult to crack the case, difficult to cure the case. Though might be the arsenic, you looks like ये तो common remedy arsenic, but how it come is very very important. मतलब उसका रूब्रिक हमने क्या कंसीडर किया है. हो सकता है अगर ये रूब्रिक में कोई रेयर मेडिसिन होंगी तो वो मेडिसिन हमको देना पड़ता था. बट दिस रेमेडी कम अप इज वेरी कॉमन मेडिसिन, पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन, दैट इज द आर्सेनिक. अभी जब मेडिसिन दिए है या आपको प्रिस्क्राइब किया है तो मेडिसिन अगर सही है, टारगेट पे लगी है, तो यू गेट द रिजल्ट, और देर इज अ डिसअपियरेंस ऑफ सिम्टम्स, और यू पेशेंट फील्स बेटर विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आपको 2 हफ्ते, महीना भर राह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. within a short period of time patients improve, और वो आपको उसके चेहरे पे दिखेगा, उसके बिहेवियर पे दिखेगा, फैमिली के बिहेवियर में दिखेगा, सेटिस्फेक्शन में दिखेगा. सो आफ्टर अ डोज ऑफ आर्सेनिक एल्बम, ट्राई टू सी द फॉलो ऑफ आफ्टर द आर्सेनिक. अभी मेडिसिन कब दिए अगेन वो भी देखना बहुत जरूरी है. मेरे ख्याल से 1 हफ्ते बाद बुलाया, राइट. Follow up after arsenic. Now the patient telling feels much better. जो अभी तक नहीं हुआ, feels much better. Thoughts of repetition is much improved. और पेशेंट जो तकलीफ थी मुझे, जो डिस्ट्रेस में मैं था, जो मैं तकलीफ में था, अभी नहीं है, अभी वो महसूस नहीं होती. स्टूल नॉर्मल, यूरिन नॉर्मल, दैट इज मैंने स्लीप भी इंप्रूव हो गई, अभी सोने लगा, डर एकदम कम हो गया. Now this is the sure shot improvement. Now there is no need to repeat the dose. That's why I have prescribed the Saclac itself for 1 week. Then after 1 week, everything is improving. Well, even the talk is well. शांति से चेहरे पे आपको एंजाइटी एकदम कम है, नहीं के बराबर, डर भी कम है, सो भी रहा है आराम से. Again, I have prescribed the Saclac. See, श्योर शॉट है, इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंट है.
है ना। यहाँ पे आपको रिपीट करने, मेडिसिन को रिपीट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि मेडिसिन ने काम नहीं किया या पार्शियल काम किया। यहाँ पे फुल्ली हमको समझ में आ रहा है कि मेडिसिन वर्किंग एट इज द हाईएस्ट पॉइंट, राइट। सो आफ्टर 2 to 3 week, even the patient feels better going to duty। पेशेंट के फैमिली मेंबर देखो कि पहले इतना जबरदस्ती करते थे, पेशेंट एनी हाउ शाम को जाता था, उसमें भी बड़बड़ करता था, एंशियस था, घबराता था, पर अभी खुद होके गया। दिस इज द पॉजिटिव साइन दैट योर रेमेडी श्योरली रजिस्टर्ड थॉट्स। देर इज अ काउंटिंग ओनली वंस, इतने में जो काउंटिंग 1 2 3 कुछ बोलने के पहले करता था, सिर्फ एक ही बार किया, बाकी लुक तो अच्छे से इंप्रूव हो गया। अगेन आई प्रिस्क्राइब द एसएल एंड आफ्टर दैट एसएल वाज प्रिस्क्राइब। बीच में थोड़ा सा स्लाइट पेन हुआ, एनल रीजन में स्लाइट हुआ, दैट्स व्हाई इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। फियर थॉट मच बेटर, नो चेकिंग नो रीचेकिंग। चेकिंग और रीचेकिंग बिल्कुल नहीं था। प्रॉपर ड्यूटी पे जाने लगा, सोने लगा। नो डिपेंडेंसी ऑन मदर, नो डिपेंडेंसी ऑन द वाइफ, बराबर है कि नहीं। इवन आफ्टर दैट आई हैव प्रिस्क्राइब द एसएल ओनली, कंसीडरिंग उसका पेन अगर ज्यादा हुआ तो एसओएस नक्सोमिका दिया था, पर वो भी पेशेंट को लेने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड आफ्टर दैट उसके बाद 1 महीने का मेडिसिन दिया, एंड पेशेंट एब्सोल्युटली, क्योंकि और वो मेडिसिन तो तब जो एलोपैथी मेडिसिन था तब मैंने टैपर किया, तभी फर्स्ट इसमें जब मुझे लगा कि ये आर्सेनिक फर्स्ट जो प्रिस्क्राइब किया और प्रिस्क्राइब करने के बाद इंप्रूवमेंट आया, तभी उसके डोजेस टैपर किया और विद इन 2 week उसको 2 week 3 week पेशेंट मेडिसिन बंद कर दिया। नाउ द पेशेंट इज विदाउट द एलोपैथिक मेडिसिन इज फुल्ली feels better, right? So this is the way that we approach and we try to evaluate the core and understand the rubric which is fit to the patient pathology and patient mental state and the whole of the case. This is the wonderful, I even I think कि ये जो efforts मैंने तब किया और जो मेडिसिन निकली, है ना, इसलिए इवन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि डोंट जस्ट लीव द केस, कि जैसे कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप घर जाइए, या जब आपके पास समय है तो उसको इवेल्युएट कीजिए, उसको नोट्स लिखिए, देखिए डिसीज क्या है, पैथोलॉजी क्या है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, रूब्रिक्स अंडरस्टैंडिंग देखिए, रूब्रिक्स कौन से लेवल का है, वेदर इट इज सोरिक रूब्रिक है, साइकोटिक रूब्रिक है, सिफिलिटिक रूब्रिक है। केस अगर फ्रैंक सिफिलिस है तो हमको रूब्रिक भी फ्रैंक सिफिलिस लगेगा। If you are prescribing the remedy on the basis of psoric or psychotic rubric, you don't get the relief at all. This is the gist of the session, and you always remember, if the remedy is absolutely right, the you feel or even the patient feel the improvement within a short period of time, within a 1 hours, within a 2 hours, within a 3 hours. Recently, my one of my good friend from the uh, BHMS called me on phone, he phoned me रिगार्डिंग, वो जैसे विलेज में प्रैक्टिस करता है, पर उसने एक बंदे को, मतलब उनके रिलेटिव्स है, एलोपैथी सॉरी होम्योपैथिक मेडिसिन दिया फॉर द डिस्ट्रेस, एंड दैट पर्सन और पेशेंट miraculously feels instantly better within a 1 to 2 hours। मैं वो केस आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, बिकॉज वो काफी अच्छा केस है कि तो जब हमको ऐसा जब रिजल्ट मिलता है तो वो इतना खुश हो गया कि उसने फोन किया, वो फ्रेंड ने, और बताया कि ऐसा ऐसे था, है ना, मुझे लगा कि एलोपैथिक मेडिसिन तो ले ही रहे हैं, उतना कुछ फर्क नहीं है, तो मैं अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन दूं। तो थोड़ा सा जो भी उसके पास नॉलेज था, जो भी उसने थोड़ा बुक पढ़ा, और उसने मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया, एंड पेशेंट फील्स इंटेंसली बेटर एंड कम आउट ऑफ दैट stage. That was the stage of withdrawal. The patient was in the habit or addiction of ganja. So that drugs dependent was there, and the patient goes into the withdrawal symptoms, and patient feels better with the 1 or 2 doses of indicated medicine, right? So the things always happen or miracle happen in homeopathy,
Now the time doesn't permit me to continue this session. If anyone want to continue, then I can. And I think there is a patient waiting for me. I have prepared the trimismatic mathematic of arsenic album, where I focus on the general symptoms of arsenic. I focus on the soric symptoms of arsenic, psychotic symptoms, syphilitic symptom, even the psychotic soric rubrics of arsenic, psychotic rubric and syphilitic rubric. See, syphilitic state, syphilitic rubric. तो नो प्रॉब्लम, हम एक तो मैं इसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दूंगा, या फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसको लेंगे. इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच.